Hello students, welcome to EduCraft Academy. In the last class we studied about the Hershey and Chase experiment and how they proved that DNA is the genetic material and not the protein. ठीक है? Here it is proved that DNA is the genetic material. ठीक है? So now we have come to know that DNA is the genetic material. So now we will study the structure of DNA. ठीक है, चलो देखो, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी द जेनेटिक मटेरियल. व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. ठीक है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट. It should be able to duplicate. Second, it should be chemically and structurally stable. ठीक है, it should be chemically and structurally stable होना चाहिए, easily change नहीं हो जाए, है ना. It should be stable. Third is it should provide the scope for slow changes. ठीक है, slow changes, that means mutation. It should provide scope for slow changes. Slow changes means mutation, because mutations that are required for evolution. Fourth is it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. ठीक है, चलो, now we will see the structure of DNA. What is the structure of DNA? देखो, DNA is the genetic material in most of the organisms and RNA is the genetic material in some viruses. DNA is the genetic material in most of the organisms and RNA is the genetic material in some viruses. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. ठीक है, DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. Now DNA is the hereditary material as it contains the genetic information. ठीक है, genetic information किस में present है? DNA. It is a long polymer of deoxyribonucleotides. It is a long polymer means it is a chain of monomers, right? Polymer means it is a chain of monomers. ठीक है, और वो monomers क्या है? Deoxyribonucleotides. It is a long polymer of deoxyribonucleotide. ठीक है, देखो, each nucleotide has 3 component. Each nucleotide, it has 3 component. A sugar, that is deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar is present in DNA and RNA, it contains ribose sugar. ठीक है, if deoxyribose sugar is present in DNA and ribose sugar is present in RNA. Second, a nitrogenous base pair. Third, a phosphate group. ठीक है, each nucleotide has 3 components. What are the 3 components? A sugar, that is deoxyribose sugar. Second, nitrogen base pair, and third, a phosphate group. Third is a phosphate group. ठीक है, RNA contains ribose sugar, DNA contains deoxyribose sugar. अब ये deoxyribose sugar क्या है? तो it is a 5 carbon pentose sugar. Deoxyribose sugar, it is a 5 carbon pentose sugar. ठीक है, nitrogen base pairs, they are of 2 categories, purines and pyrimidines. ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर कितने? दे आर ऑफ 2 categories, purines and pyrimidines. Remember, purines have 2 carbon rings in their structures. Purines have 2 carbon rings in their structure, whereas pyrimidine has 1 ring in their structure. The purines, the example of purine are adenine and guanine. Example of pyrimidine are cytosine, thymine and uracil. Cytosine, thymine, uracil. ठीक है, देखो, this is very important. नाइट्रोजन बेस पेयर्स. ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स, they are of
टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स हैव 2 रिंग्स, देखो 2 रिंग होगी. कार्बन नाइट्रोजन की 2 रिंग्स, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन की 2 रिंग्स होगी प्यूरिन में. और पिरिमिडिन में 1 रिंग, कार्बन नाइट्रोजन की 1 रिंग, है ना. तो देखो प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या है, एडिनाइन एंड गुएनाइन. पिरिमिडिन का एग्जाम्पल क्या है, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल. साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल. एंड दिस प्यूरिन it forms hydrogen bond with pyrimidine. Purines form hydrogen bond with pyrimidine, ठीक है. तो इसमें क्या है, एडिनाइन which is purine, it will form double hydrogen bond with thymine. And guanine, it will form guanine which is purine, 2 carbon nitrogen ring, it will form 3 hydrogen bond with cytosine, ठीक है. Third is phosphate group, that is it contains phosphoric acid. Phosphoric acid, that is H3PO4. Phosphate group, it contains phosphoric acid, that is H3PO4. H3PO4, H3PO4, ठीक है. It combines 2 nucleotides by formation of phosphodiester bond. This is very important. Phosphodiester bond, ठीक है. Phosphoric acid, it combines 2 nucleotides. ठीक है. How 2 nucleotides are joined with each other? They are joined by formation of phosphodiester bond. Phosphodiester bond. This is very important, ठीक है. phosphodiester bond, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है. अब देखो अभी 2 बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है. एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, देखो सबसे पहले 2 वर्ड्स का मतलब समझो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड होता है, अ न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ शुगर एंड बेस, ठीक है. शुगर एंड बेस, शुगर प्लस बेस इज फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड. शुगर एंड बेस, दिस शुगर एंड बेस विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, रिमेंबर, ठीक है. शुगर एंड बेस विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड. तो बेस यानी नाइट्रोजन बेस, it will link with the OH, it will link to the OH of first carbon pentose sugar through N-glycosidic linkage, ठीक है. This nitrogen base, it will link with the OH of first, देखो ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, राइट, 5 कार्बन पेंटोज शुगर. तो इसके OH, फर्स्ट कार्बन के OH से ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये इसके फर्स्ट कार्बन के OH से कंबाइन होगा. कौन सा बॉन्ड, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. दिस नाइट्रोजन बेस पेयर, इट विल कंबाइन विद द OH ऑफ दिस फर्स्ट कार्बन, OH ऑफ फर्स्ट कार्बन बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. समझ आया आपको. न्यूक्लियोसाइड, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. Sugar and nitrogen base will combine and form a nucleoside. And which bond is present here? N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. Then there is phosphoester linkage. ठीक है. देखो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो गया, यानी शुगर और बेस फॉर्म हो गया. तो शुगर बेस, न्यूक्लियोसाइड विल कंबाइन विद दिस फॉस्फेट ग्रुप, राइट. न्यूक्लियोसाइड विल कंबाइन विद दिस फॉस्फेट ग्रुप. तो ये कैसे होगा? This phosphate group, it will get linked to OH of 5 carbon sugar, OH of 5 carbon of nucleoside through phosphoester linkage, ठीक है. यानी फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ कंबाइन कैसे होगा? बाय फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है. ये तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया. अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे कंबाइन होगा? बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है. 1 न्यूक्लियोटाइड will combine it, 2 nucleotides combine together by formation of phosphodiester bond, ठीक है, by phosphodiester bond. इतना समझ आया आपको यहाँ तक? स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा अब तक? सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर एंड बेस, दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. तो नाइट्रोजन बेस, इट गेट्स लिंक्ड टू OH of first carbon pentose sugar by N-glycosidic linkage to form nucleoside, ठीक है. Now this nucleoside, अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म यानी फॉस्फेट ऐड होना है. तो फॉस्फेट कैसे ऐड होगा? द फॉस्फेट ग्रुप, इट गेट्स लिंक्ड टू
OH of 5 carbon of nucleoside through phosphoester linkage. ठीक है, phosphoester linkage. Now phosphodiester bond, two nucleotides are combined together by formation of phosphodiester bond. ठीक है, इतना समझ आया. न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर लिंकेज. ठीक है, चलो अब देखते हैं हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. देखो इतना तो समझ आ गया यहाँ तक, राइट. अभी ना आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल 7.1 है टेक्स्ट बुक है ना, वो देखते हैं. देखो राइबो न्यूक्लियोसाइड, इनको नेम दिए गए होते हैं. अभी तक हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन बेस पेयर दे आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन एंड pyrimidine. Purine has 2 rings in their structure. Example adenine, guanine. Pyrimidines have 1 ring in their structure, cytosine, thymine. ठीक है. तो उनके नाम, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो गया, न्यूक्लियोसाइड यानी क्या, एडिनाइन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो उसका नाम क्या होगा, एडिनाइन. समझो है ना, प्यूरीन का एग्जांपल क्या है, एडिनाइन विल कंबाइन विद दिस शुगर, राइट, डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो उसका नाम पड़ेगा, वो नाम क्या है, डीऑक्सी एडिनोसाइन. ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसाइन. गुएनाइन कंबाइन विद दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट इज डीऑक्सी गुआनोसाइन. साइटोसाइन कंबाइन विद दिस राइबोस, इट फॉर्म्स, देखो साइटोसाइन इज pyrimidine. ठीक है, pyrimidine, तो यहाँ पर डीन नाम पड़ेगा, pyrimidine यहाँ पर डीन नाम पड़ेगा. ठीक है, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड थाइमीन कंबाइन विद दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉर्म्स थाइमिडीन. ठीक है, इन्हें अच्छे से ना इन्हें याद कर लेना है. डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनाइन विल फॉर्म डीऑक्सी एडिनोसाइन. गुएनाइन विल फॉर्म डीऑक्सी गुआनोसाइन. साइटोसाइन विल फॉर्म डीऑक्सीसाइटिडाइन. थाइमाइन विल फॉर्म थाइमिडाइन. ठीक है, चलो ये तो हमने नाम पढ़े न्यूक्लियोसाइड के. इसके बाद न्यूक्लियोटाइड भी फॉर्म करेगा, राइट. दिस फॉस्फेट ग्रुप विल लिंक बाय फॉस्फोएस्टर लिंकेज, राइट, एंड देन न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म. न्यूक्लियोटाइड के क्या नाम पड़ेंगे, एडिनाइन, इट्स नेम विल बी डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड. गुआनिन, इट्स नेम विल बी डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड. साइटोसाइन, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड. थाइमीन, इट्स नेम विल बी थाइमिडाइलिक एसिड. ठीक है, समझ गए ना आप, साइन है ना, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन. साइटोसाइन में डीऑक्सीसाइटिडीन, थाइमीन में थाइमिडीन. और न्यूक्लियोटाइड का नाम डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुएनाइलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड. ठीक है, सेम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये तो हो गए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अभी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उनके भी नेम पढ़ेंगे, उनका भी नाम होगा टेबल 7.2. एडिनाइन, इट्स नेम विल बी एडिनोसाइन. गुआनिन, इट्स नेम विल बी गुआनोसाइन. साइटोसाइन, इट्स नेम विल बी साइटिडाइन. यूरासिल, इट्स नेम विल बी यूरिडाइन. ठीक है, समझ गए आप उनके नाम. ठीक है, अंडरस्टूड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से फॉर्म हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स इन तीनों से फॉर्म हुआ है. ठीक है, इतना हमने समझ लिया. अभी एक चीज़ और समझनी है, वो है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, मिशर ही डिस्कवर्ड न्यूक्लिन इन 1869, राइट. मिशर डिस्कवर्ड न्यूक्लिन. पर न्यूक्लिन क्या है, तो डीएनए इज एन, देखो डीएनए में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है. डीएनए हम ये क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है. फॉस्फेट ग्रुप क्या है, इट इज एसिड है ना, इट इज एसिड. इसमें क्या प्रेजेंट है, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड. इसका मतलब इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस. ठीक है, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. So it was named as न्यूक्लिन बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869. ठीक है, इस चैप्टर में जो भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं ना और ईयर्स आ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप अच्छे से पढ़ लेना यहाँ तक. ठीक है, अब हम देखते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल.
ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, दे टोल्ड दैट डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide chains. They consist of 2 polynucleotide See, Watson and Crick, they proposed the Watson and Crick model of DNA. Watson and Crick model of DNA. They proposed double helix model for the structure of DNA. Double helix model. Double helix model means a spiral staircase. Spiral staircase. ठीक है, spiral staircase. ठीक है, these chains. देखो, DNA molecule it consists of 2 polynucleotide chains. It consists of 2 polynucleotide chains. And these chains are, the 2 chains are anti-parallel. ठीक है, the 2 chains are anti-parallel. यानी if one chain has polarity 5' to 3', the other will have 3' to 5'. ठीक है, these chain forms a double helix like a spiral staircase. And DNA molecule consists of 2 polynucleotide chains or strands. देखो, इसमें हमने क्या देखा? 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. द शुगर एंड बेस दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड. शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, दीज 3 फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, सो द शुगर फॉस्फेट यूनिट इट फॉर्म्स द बैकबोन एंड नाइट्रोजन बेस फॉर्म्स द सेंटर. ठीक है, आप इसका फिगर देखिए, फिगर 7.5 टेक्स्ट बुक में फिगर 7.5. द शुगर फॉस्फेट यूनिट इट फॉर्म्स द बैकबोन. जो बैकबोन है, बैकबोन इट विल बी फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस दे फॉर्म द सेंटर. ठीक है, शुगर फॉस्फेट इट विल फॉर्म द बैकबोन एंड नाइट्रोजन बेस इट विल फॉर्म द सेंटर. ठीक है, both the strands they are joined together by weak hydrogen bonds present between the nitrogenous bases of 2 strands. ठीक है, दोनों strands, अभी हमने देखा जो बैकबोन है, बैकबोन will be formed by sugar phosphate unit और नाइट्रोजन बेस will be present at the center. यानी कि वो दोनों ज्वाइन किस तरीके से होंगे? जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो ज्वाइन होंगे बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नाइट्रोजन बेसेस दे विल बी ज्वाइन टुगेदर बाय weak hydrogen bonds. ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस दे विल बी ज्वाइन टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. अब देखो पेयरिंग किस तरीके से होगी? पेयरिंग एडिनाइन, देखो प्यूरिन विल पेयर विद पिरिमिडीन. देखो अभी हमने क्या देखा था? प्यूरिन इज मेड ऑफ 2 रिंग्स. प्यूरिन्स हैव 2 रिंग्स इन दिस. देखो इनका जो डायामीटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लेकिन का जो डायामीटर होता है, डायामीटर वो कांस्टेंट रहता है. प्यूरिन्स हैव 2 रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन्स हैव 1 रिंग इन देयर स्ट्रक्चर. तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही कंबाइन होंगे. ठीक है, प्यूरिन्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पिरिमिडीन. ठीक है, प्यूरिन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पिरिमिडीन. प्यूरिन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड. पिरिमिडीन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड. ठीक है, प्यूरिन विल बॉन्ड विद पिरिमिडीन, प्यूरिन विल बॉन्ड विद पिरिमिडीन, पिरिमिडीन विल बॉन्ड विद प्यूरिन. समझ रहे हो ना ये बात कि प्यूरिन के पास 2 साइक्लिक रिंग्स है. प्यूरिन के पास 2 रिंग्स उसके स्ट्रक्चर में है, पिरिमिडीन के पास 1 रिंग स्ट्रक्चर में है, तो वो दोनों ही ज्वाइन होंगे. ठीक है, चलो अब पेयरिंग किस तरीके से होगी? एडिनाइन विल पेयर विद थाइमाइन, साइटोसाइन विल पेयर विद गुआनाइन. ठीक है, Adenine will pair with thymine, 2 hydrogen bonds. Adenine will pair with thymine by 2 hydrogen bonds and cytosine will pair with guanine by 3 hydrogen bonds. ठीक है, adenine pairs with thymine by 2 hydrogen bond and cytosine pairs with guanine by 3 hydrogen bond. And this base pairing is called complementary pairing. This base pairing is called complementary pairing. Note that pairing is always between a purine and pyrimidine. याद रहेगा ना ये, प्यूरिन्स
have 2 rings in their structure. Example, adenine, guanine, pyrimidines have 1 ring in their structure. Example, cytosine, thymine. Adenine will form double hydrogen bond with thymine. Cytosine will form ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनाइन. ठीक है, देखो 2 रिंग्स और 1 रिंग है ना, यानी 2 रिंग 1 रिंग से कंबाइन होंगे तभी तो डायामीटर कांस्टेंट रहेगा, है ना. 2 रिंग और 1 रिंग से कंबाइन होगी तभी तो डायामीटर कांस्टेंट रहेगा, राइट. डायामीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है. प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ ही कंबाइन होते हैं. प्यूरिन प्यूरिन से कंबाइन नहीं होते. पिरिमिडिन पिरिमिडिन से कंबाइन नहीं होते. ठीक है, प्यूरिन विल कंबाइन विद पिरिमिडिन ओनली. ठीक है, चलो. तो डबल हेलिक्स टेक्स अ कंप्लीट टर्न आफ्टर 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मतलब कंप्लीट टर्न, एक पूरा सेट फिनिश, फिर सेकंड सेट, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 3.4 नैनोमीटर. देयर आर 10 बेस पेयर इन अ कंप्लीट टर्न. ठीक है, 10 बेस पेयर्स इन अ कंप्लीट टर्न, मतलब एक कंप्लीट टर्न में कितने 10 बेस पेयर है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. द width of DNA molecule is 0.20 नैनोमीटर. ठीक है, width is 0.20 नैनोमीटर. width is 0.20 नैनोमीटर. The nucleotides in helix are joined together by phosphodiester bond. phosphodiester bond. Nucleotides are joined together by phosphodiester bond. ठीक है, यहाँ पर हमने 3 पढ़े थे, N ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोएस्टर एंड फॉस्फोडाइएस्टर. ठीक है, चलो. तो ये हो गया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. इसके बाद है एक शेरगैफ रूल. इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमाइन एंड द अमाउंट ऑफ गुआनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसाइन. ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने क्या देखा, एडेनाइन forms double hydrogen bond with thymine. Guanine, it combines with triple hydrogen bond with cytosine. ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, जितना एडेनाइन होगा उतना ही थाइमाइन होगा और जितना गुआनाइन होगा उतना ही साइटोसाइन होगा. ठीक है, तो बाद में इसी चीज़ को हमने शेरगैफ रूल कह दिया कि द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमाइन एंड द अमाउंट ऑफ गुआनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसाइन. ठीक है, चलो. तो फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्लास में हम पैकिंग से स्टार्ट करेंगे, पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ठीक है, यहाँ तक का आप स्टडी कर लेना. ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर.